Dear students, welcome to the tele classes once again. Today I am with a brand new unit of class 10 science book, and today our topic will be acid, basis and salt. So in today's topic we are going to read what acids are, what bases are, how you are going to identify acids and bases by using special type of substances known as indicators, etc. So let's start the topic. Up to your 8th class, आपके क्लास 8 तक आपने एसिड का डेफिनेशन पढ़ा होगा. एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर सोर इन टेस्ट, ऐसा आपने सुना होगा पक्का. बेसिस आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, ऐसा आपने सुना होगा. बट इन योर 10th क्लास वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ लिटिल बिट मोर टेक्निकल डेफिनेशन. हम थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन की ओर जाएंगे, हम थोड़ा केमिकल डेफिनेशन की ओर जाने की कोशिश करेंगे. 10th क्लास में एसिड को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, acids are substances which gives H positive ion in water. 10th क्लास में आप एसिड को ऐसे डिफाइन करेंगे, acids are substances which gives H positive in water. आप जब भी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे यहां एसिड का, what does it gives? It gives H positive and Cl negative in water. What does that means? That means in water HCl is liberating hydrogen. That's why we call it an acid. Our definition says acids are those substances which gives H positive in water. So what HCl is doing? HCl is also liberating H positive in water. Likewise, H2SO4 is sulfuric acid. Its aqueous solution gives you 2H positive plus SO4 2 negative. What you are getting again? You are again getting H positive in aqueous solution. That's why we can call it an acid. Up to your 8th standard, you got a definition of acids are sour in taste and it turns blue litmus to red, etc. So in this class we are going to give it a little bit more chemical definition. We are going to give it somewhat chemical shape. HCl is an acid because as per our definition it is giving H positive ion in water. Okay. H2SO4 is an acid because it is giving H positive in water as per the definition. Okay. H3PO4. What is this acid? This is phosphoric acid. Is it again giving you H positive ion? Yes. How? Phosphoric acid is giving you 3H positive ions and phosphate ion. As per the definition of acid, those substances which gives H positive ions in water are known as acids. So these three substances would definitely be an acid as per the definition. Yes. Now, see, I am going to write it again here. HCl gives you H positive plus Cl negative. Likewise H2SO4, it gives you 2H positive plus SO4 2 negative. These two acids are known as strong acids. Why? See, I am going to write one more acid over here. This is acetic acid, CH3COOH. How it goes in water? It goes like CH3COO negative plus H positive. What does that mean? It is again giving you H positive ion in water. That's why we can call it an acid. But those acids which dissociates almost completely, those acids are known as strong acids. Why? Because in those acids H positive ion concentration will be on the higher side. Acid में जितना H positive ion release हो जाएगा बेटा, उतना ज़्यादा stronger acid कहलाएगा. अब ये acid है कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाता है, तो इसमें भी H पॉजिटिव आयन कम डिसोशिएट होंगे, इसीलिए दिस एसिड वुड बी कॉल्ड एज वीक एसिड. लाइकवाइज वी कैन डिफाइन बेस इन द सेम वे. बेसेस आर सबस्टेंसेस व्हिच गिव्स OH नेगेटिव इन वाटर. यस, हाइड्रोक्साइड आयन देता है ये पानी में. एसिड वो सबस्टेंसेस थे जो H पॉजिटिव दे रहा था वाटर में. हाइड्रोक्साइड जो देता है सबस्टेंस, उनको हम क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे. कैसे बेटा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड.
in aqueous gives you sodium positive plus OH negative. Does it gives you OH negative? Yes. All those substances which liberates OH negative in water, you can call them base. Okay. Likewise, calcium hydroxide is there. Okay, beta. Sorry, Ca2 positive plus 2OH negative. It's again giving you OH negative. That's why we can call it a base. KOH is here. Potassium hydroxide, it gives you K positive plus OH negative. Is it? Why all these are bases? All these are bases because it's liberating OH negative in water. This definition comes to you only in 10th class. Up to your 8th standard, you are studying it in terms of taste, in terms of its indication with indicators, etc. So the same happens in case of base also. How? See, KOH and NaOH is a strong base. These are strong base. Why? I am again telling you, when in an acid, जितना H पॉजिटिव आयन निकलेगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा, जितना कम H पॉजिटिव निकलेगा उतना वीक एसिड कहलाएगा. यही केस यहाँ पे भी सही पड़ता है. जितना OH नेगेटिव वाटर में ज्यादा निकलेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, जितना OH नेगेटिव पानी में कम निकलेगा उतना आपका वीक बेस कहलाएगा. कैसे देख लीजिए. See, potassium hydroxide gives you potassium and ion and hydroxide ion. These two are strong bases. Why? They dissociate almost completely. When they dissociate almost completely, what happens? They give more of OH negative ions in water. That means they are strong base. And वो बेसिस जो completely dissociate नहीं हो पाते हैं तो उनका OH negative ion भी पानी में कम निकलेगा, तो इनको हम क्या कह सकते हैं? Weak bases कह सकते हैं. I hope you have understood it very well, the definition of acids and bases. Now, acids and bases can be concentrated and dilute. Acids and bases can be concentrated and dilute or dilute. फिर से थोड़ा सेम एनालॉजी पड़ेगा यहाँ पे. सपोज आपने इसमें HCl रखा है, अभी ये प्योर है, इसमें आपने कोई पानी ऐड नहीं किया. ठीक. जिस एसिड के सॉल्यूशन में पानी बिल्कुल ना हो, ना ऐड किया हो या बिल्कुल कम ऐड किया हो, उस सॉल्यूशन को आप कंसंट्रेटेड एसिड बोला जाएगा. ठीक. वही बेस के साथ भी सही है. अगर आप इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, यू आर एडिंग वाटर इन इट, when the concentration of water is getting more and more, आप पानी का क्वांटिटी ज्यादा ऐड करते जाएंगे उस एसिड में, तो उस एसिड को या उस बेस को आप डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस कहलाएंगे. फाइन. नाउ आई एम अगेन गिविंग यू अ स्पेशल वार्निंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. आप जब भी लैब में प्रैक्टिकल करने जाओगे बेटा, तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि एसिड एंड बेसिस के सॉल्यूशन में अपना कोई भी बेयर पार्ट ना डालें, हाथ वगैरह ना डालें, अदरवाइज इट कुड बी वेरी फेटल. कुछ एसिड्स डाइल्यूट हो सकते हैं तो वो दैट मे बी टचेबल, बट विदाउट कंसल्टिंग अ टीचर या विदाउट कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट यू शुड नेवर टच एसिड्स बाय योर बेयर हैंड, बिकॉज अगर वो कंसंट्रेटेड हुआ तो इट कुड बी फेटल टू योर दैट पर्टिकुलर पार्ट और इवन टू योर लाइफ. ओके. नाउ अब सर क्या एसिड्स के एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, इट कैन बी ऑर्गेनिक एसिड्स and mineral acid. Acids को on the basis of source, यानी कि वो एसिड किस सोर्स से आया, प्लांट से आया, एनिमल से आया, मिनरल से आया, उस सोर्स के बेसिस पे एसिड के दो टाइप्स होते हैं बेटा. एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एक को हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स. ओके. ऑल दोज एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, टाटारिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, etc., those acids which comes from plants, animals, etc., these acids are known as organic acids. जो plant या animal source से हम obtain करते हैं, उन सारे acids को हम क्या बोलते हैं? Organic acids. For example, कुछ ये acids हैं जो plant से animal से हम ये करते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं organic acids. वो सारे acids जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं, हम उनसे निकालते हैं. दोज एसिड्स व्हिच कम्स फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट,
those acids are known as mineral acids. For example, H2SO4 is here, HCl is here, H3PO4 is here. Sulfur is a mineral found in the earth crust. Is it? ठीक है सर. ये है आपका क्लोरीन है, आपका फॉस्फोरस है, जो अर्थ क्रस्ट में मिनरल से बनाया जाता है, एसिड पाया जाता है, उन एसिड्स को आप मिनरल एसिड्स कहोगे. ट्रस्ट मी, दीज एसिड्स आर सो कोरोसिव इन नेचर दैट दे कैन इवन टेक समवन्स लाइफ. सो मिनरल एसिड्स के साथ आप बहुत कॉशियस के साथ रहिएगा. इनके साथ काम करते समय आप बहुत एहतियात बरतिएगा. दैट्स अप टू यू प्लीज. नाउ ऑर्गेनिक एसिड में ज्यादा, जैसे टाटारिक एसिड है, इट्स फाउंड इन टेमारिंड. इमली जो आप खाते हैं बहुत खट्टा होता है. दैट्स व्हाई वी से एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. इमली इसलिए खट्टा है आपको क्योंकि उसमें ये टाटारिक एसिड पाया जाता है. ऑक्सैलिक एसिड हमारे टमाटरोज में, आप जब अपनी सब्जी में आप ज्यादा टमाटर डालते हैं तो वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड एटसेट्रा. ओके, सो आफ्टर दैट इन योर 8th standard you have listened to a definition from your teacher that acids are those substances which are sour in taste. क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप उस एसिड को पता करने के लिए अपने जुबान से टेस्ट करेंगे कि सुअर है कि बीटर है, बेस है कि एसिड है, देखने के लिए. कुड यू टेस्ट वेदर इट्स एसिड और बेसिस बाय टेस्टिंग इट विद योर टंग? नो, यू कांट. सम एसिड्स आर सो कोरोसिव इट कैन इवन टेक योर लाइफ. सो कुछ ऑप्शन है सर दूसरा, फिर हम कैसे कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन. There are special substances known as indicators which when added to acids and bases give specific color, therefore identifying that type of substance whether it's acid or base. उनको हम क्या बोलते हैं सर? इंडिकेटर बोलते हैं. ठीक, इंडिकेटर्स. ये स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टांसेस होता है. स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टांस, these are special type of substance which when added to acids and bases gives a change in color. So it helps in identifying an acid or a base on the basis of color what it produces. Okay, so this is about indicator. आप सभी ने लिटमस पेपर का नाम सुना होगा. आई थिंक यू हैव सीन इट इन योर 8th standard. इफ नॉट, आई एम गोइंग टू गिव इट वंस अगेन फॉर यू. देयर आर सम स्पेशल इंडिकेटर्स व्हिच वी यूज इन आवर लैब्स. हमारे लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है लिटमस पेपर. फिनोप्थेलिन आपके लैब में बहुत ज्यादा यूज होता है. टर्मेरिक हमारे घर में होता है बेटा. हल्दी जिसको हम बोलते हैं वो भी एक टाइप का इंडिकेटर है. ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडिकेटर इज लिटमस. लिटमस पेपर के शेप में भी आपको मिलेगा, सॉल्यूशन के टाइप में भी आपको मिलेगा. ठीक सर, फिर लिटमस से हम कैसे पता करें कि एसिड, कोई सबस्टेंस एसिड है या बेस है? देन सी, सपोज दिस इज एन एसिड HCl. ओके, you have two litmus solution or two litmus paper. One is called red litmus paper and the other is called blue litmus paper. Okay, what it does, acid turns red litmus to blue. Acid turns red litmus, blue litmus to red, and base turns red litmus to blue. Remember it. Acid turns blue litmus to red. You can remember it this way: ABR, BRB. Acid turns blue litmus to red. Basis turns red litmus to blue. Suppose this is an acid. What do you have to do? You have to put this particular paper, dip this particular paper in the acid without letting your hand touch that acid because it might be corrosive. अगर ये blue litmus paper red में change हो गया, then obviously this is an acid. उसी तरह अगर base आपको पता करना है, for example इसमें कुछ NaOH आपने रखा है, तब आपको क्या करना है? इसमें red litmus paper डुबो के देखना है. If that red litmus paper turns to blue, then obviously this is a base. आपको पता करना है. बाकी एक दूसरे में दूसरे पेपर का जो बच गया पेपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा. तो acid turns blue litmus to red, base turns red litmus to blue. Okay.
सो ये एक इंडिकेटर है पहला लिटमस, पेपर के टाइप में भी होगा लेकिन पेपर इज वेरी इजीली अवेलेबल इन योर लैब, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट अगेन एंड अगेन। अगर आपके पास ये क्या बोलते हैं ब्लू लिटमस है तो आप एसिड चेक करके देख लीजिएगा, वो इट विल डेफिनेटली टर्न्स इनटू रेड। अगर बेसिस है तो वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है सर। सो नाउ दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर which might tell you that whether a given substance is acid or base. Now the second type of indicator is turmeric, which you can prepare it in your home, and the other one is phenolphthalein, and the last one is not last one but these are mentioning in your syllabus, that's why I am only giving you these type of indicators. ये तीन indicators है सर। टर्मेरिक का क्या असर पड़ेगा एसिड और बेसिस पे, हम ऐसे देखेंगे। सी दिस इज एसिड एंड दीज आर बेसिस, ओके सर। इफ यू एड टर्मेरिक सॉल्यूशन टू एसिड्स यू विल गेट नो कलर, कलरलेस, ओके। एंड इफ यू एड टर्मेरिक टू बेस आपको रेड कलर मिलेगा, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन क्या था, बेस था। क्यों? जब भी आप बेस में टर्मेरिक सॉल्यूशन ऐड करोगे या टर्मेरिक पेस्ट ऐड करोगे वो इंस्टेंटली रेड में कन्वर्ट हो जाता है, उससे आपको पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड था या बेस था। उसके बाद नाउ फिनोप्थिलीन इज हियर। फिनोप्थिलीन क्या करता है, जब भी एसिड में ऐड करता है तो फिर से कलरलेस, कोई कलर में चेंज नहीं होगा। जब आप बेस में ऐड करोगे तो वो इंस्टेंटली पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेस है। आप कोई सॉल्यूशन रखो, उसमें दो सॉल्यूशन रखा है, एक में आपने फिनोप्थिलीन ऐड किया तो उसमें कोई कलर नहीं आया, तो यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज एसिड। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन है, आपने उसमें ऐड किया तो इंस्टेंटली वो पिंक कलर में चेंज हो गया, तो आपको पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन या वो सबस्टेंस क्या था, एसिड, सॉरी बेस था। बेस में ये क्या हो जाएगा, पिंक में चेंज हो जाएगा, ठीक। नाउ टॉकिंग ऑफ मिथाइल ऑरेंज, एसिड में जब भी मिथाइल ऑरेंज ऐड करोगे तो वो उसको रेड कलर बना देगा, बेस में जब भी ऐड करोगे तो वो येलो कलर आपको दे देगा। मिथाइल ऑरेंज को कोई सॉल्यूशन ले लीजिएगा, इसमें दो, एक एसिड रखिए एक बेस रखिए, ऐसे। आई एम गोइंग टू इरेज दिस फॉर योर कन्वीनियंस, सॉरी। दिस इज एन एसिड, यू डोंट नो, एंड दिस इज अ बेस, यू डोंट नो, ओके। ये एसिड है, आपको नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। ये बेस है, आपको नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। एसिड में जब आप, जैसे इधर देख लीजिए, मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालने से कौन सा कलर आता है, आपने इसमें मिथाइल ऑरेंज डाला, इसमें भी मिथाइल ऑरेंज डाला, इसमें इंस्टेंटली रेड कलर बन जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि वो कौन सा सॉल्यूशन था, एसिडिक सॉल्यूशन था। और जिस सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डालने पे येलो कलर आ जाएगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इंस्टेंटली कि दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज बेसिक, ओके। सो दिस वर द टाइप ऑफ indicators you have to use in your lab in order to identify acids and bases. 8th class में जो आपका definition था, acids are those substances which gives H positive in ये तो अभी 10th class में आ गया। 8th class में आप बोलते थे acids are those substances which are sour in taste। तो आप देखने के लिए एसिड को पी नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, इट्स वेरी corrosive, that's why these indicators are here for you to check up whether that particular substance is acidic or basic. अब एक क्वेश्चन और यहां बनता है बेटा, सर वाटर एसिड है कि बेस है? बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट यही पूछते हैं, सर वाटर में भी तो है ना, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आएगा, ठीक। तो सर ये तो एसिड या बेस दोनों होना चाहिए, नहीं सर। क्यों नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? what does neutral means? Neutral means water is neither acidic nor basic. वाटर ना तो एसिडिक हो सकता है और ना बेसिक। देख लीजिए, H पॉजिटिव आयन इसमें है लेकिन उतना ही OH नेगेटिव आयन इसमें है। देख लीजिए, ये वाटर है तो इसमें जितना H पॉजिटिव है उतना OH नेगेटिव है। अगर H पॉजिटिव ज्यादा होता तो ऑब्वियसली यू कैन कॉल इट एन एसिड, या OH नेगेटिव ज्यादा होता तो यू माइट हैव कॉल्ड इट एन अ बेस, बट इन दिस पर्टिकुलर केस H पॉजिटिव जितना है उतना OH नेगेटिव आयन है, सो व्हाट हैपेंस, you can call it neutral, neither acidic nor basic, okay। याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं ये
कि वाटर इज एसिडिक और बेसिक? नो, वाटर इज न्यूट्रल, इट इज नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक। ठीक है सर। अब एक टाइप का इंडिकेटर तो हमने पढ़ा जिसमें हमने टर्मेरिक, लिटमस, फिनोक्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह पढ़ा, और एक टाइप का इंडिकेटर होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर यूनिवर्सल इंडिकेटर और दूसरे इंडिकेटर्स में डिफरेंस क्या है? वो इंडिकेटर्स जो सिर्फ आपको ये बताता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उनको नॉर्मल इंडिकेटर्स हम कहा जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में क्या स्पेशलिटी है? ये आपको ऐसा तो बताएगा कि ये एसिड है या बेस है, ये तो पक्का बताना ही बताना है, वो तो इंडिकेटर का काम है। आपको ये भी बताएगा ये इसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। उस टाइप के इंडिकेटर्स को आप क्या बोलोगे? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। दोस इंडिकेटर्स व्हिच टेल्स यू whether a given substance is acid or base, वो पहले हमने 4 टाइप के इंडिकेटर्स पता, वो टाइप के इंडिकेटर्स थे। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको ये तो जरूर बताएगा कि आपके पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है या बेस है, साथ में ये भी बताएगा कि आपके उस पर्टिकुलर एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बताएगा। एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसको हम बोलते हैं पीएच पेपर। क्या बोलते हैं बेटा? पीएच पेपर। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, इसका मतलब होता है बेटा स्ट्रेंथ इंग्लिश में। H मतलब हाइड्रोजन। पीएच का मतलब पोटेंस हाइड्रोजन, दैट मींस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। मैंने पहले भी बोला था एसिड में जितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा। हमने बोला था बेटा इसके लिए एक पीएच पेपर को पता करने के लिए, उसके जरिए ये पता करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है और स्ट्रॉन्ग बेस कितना है, एक स्केल मिलता है हमारे पास पीएच स्केल करके। क्या करके? देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच स्केल में आपको 14 रेटिंग तक मिलेगा, 1 से लेकर 14 तक। दिस पीएच स्केल वाज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन। इसमें आपको पता चलेगा 7 न्यूट्रल है बेटा, वाटर का हमेशा 7 होता है, ये याद रखना। वाटर का पीएच हमेशा 7, दैट्स व्हाई वाटर इज न्यूट्रल, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। इस तरफ जितना आओगे उतना ज्यादा एसिड मिलेगा, इस तरफ जितना जाओगे उतना ज्यादा बेस मिलेगा। ठीक, देख लीजिए सपोज आपने कोई सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में आपने एक पीएच पेपर डाला, पीएच पेपर डालने पे उसका कलर आया 8 के बराबर, जैसे ऐसे होता है VIBGYOR, ऐसे आएगा। वहां से पहले फेड होता है इंडिगो, फिर फेड होता है ब्लू, फिर ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर रेड। ठीक, सपोज उसका कलर 8 के बराबर आ गया। आप पीएच पेपर का कलर आपने इस स्केल से मैच किया तो 8 से मैच हो रहा था, 8 वाले कलर से, तो आपको पता चलेगा कि 7 के बाद जो भी है वो सारा क्या है? बेस है। देख लीजिए 7 के बाद जो भी है वो बेस है, ऐसे एसिड 7 तक, फिर 7 से आगे जो भी है वो सारा बेस। ठीक, याद रखिएगा 7 के बाद 6 भी एसिड है, 5 भी एसिड, 4 पे भी 3 2 1, यहां तक जो भी आएगा वो क्या है? एसिडिक है। 7 न्यूट्रल है, वाटर, जैसे हमने बोला था पहले। 7 के बाद जितने भी पीएच स्केल है 8 9 10 11 12 13 14, जिस भी सबस्टेंस का पीएच होगा वो सारा बेसिक होगा। अब इसमें देख लीजिए एक चीज है, जितना इस साइड आएगा, जितना 1 की तरफ आएगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, pH 1 जिस भी एसिड का होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होना चाहिए। pH 2 जिस एसिड का होगा वो इससे थोड़ा वीक होना चाहिए, फिर थोड़ा वीक, फिर थोड़ा वीक, फिर थोड़ा वीक। 7 पे जो एसिड आएगा वो सबसे वीक एसिड होना चाहिए। ठीक, उसी तरह जितना इस साइड में जाएगा उतना आपको स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, तो 7 इज डेफिनेटली न्यूट्रल, 8 बेस है बेटा लेकिन वीक बेस है, 9 बेस है लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, 10 बेस है लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, 11 बेस है लेकिन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, 12 इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 13 इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, 14 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है ना? देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, जितना ज्यादा आप राइट साइड में जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ज्यादा लेफ्ट में आएगा उतना आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलेगा। सो व्हाट इट्स गिविंग यू एन इंडिकेशन ऑफ वेदर a substance is acid or base or
if a substance is an acid, how strong is that acid? And if a substance is a base, how strong is the particular base? So this is again a type of indicator, universal indicator. हमने पहले भी बोला, वो आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि एसिड है कि बेस है, उसके अलावा ये भी बताएगा कि how strong is that acid and how strong is that base. So this was another type of indicator known as special indicator. pH scale के बारे में भी हमने आपको दे दिया, लास्ट में भी हम आपको डिटेल दे देंगे. Now आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? एसिड का डेफिनेशन, दो सबस्टेंस विच गिव्स H पॉजिटिव इन वाटर. बेस का डेफिनेशन, दो सबस्टेंस विच गिव्स अस OH नेगेटिव इन वाटर. उसके बाद टेस्ट पे हमने बोला एसिड आर सोर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. ठीक, आपको उस टेस्ट के बिना पे चेक करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, आप उसको टेस्ट ऐसे नहीं कर सकते. तो आपको क्या करना है, आपको स्पेशल टाइप ऑफ सबस्टेंस दिया गया है विच व्हेन एडेड टू एसिड एंड बेसिस गिव्स यू सम स्पेशल कलर. उस कलर के बेसिस पे आप ये पता करेंगे कि वो एसिड है या बेस है. जैसे हमने बोला लिटमस पेपर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. ये आप लैब में भी कर सकते हो बेटा, पेपर भी मिलता है लिटमस का, सॉल्यूशन भी मिलता है. फिर टर्मेरिक और फिनैप्थेलिन, टर्मेरिक एसिड में कोई कलर नहीं देगा, फिनोप्थेलिन भी एसिड में कोई कलर नहीं देगा. टर्मेरिक जब बेस में मिलाएंगे आपको रेड कलर मिलेगा, फिनोप्थेलिन पिंक कलर देगा आपको. फिर मिथाइल ऑरेंज की बात है आपने, मिथाइल ऑरेंज में हमने बोला था, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, माय एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो. मिथाइल ऑरेंज के बारे में ये एक एनालॉजी यूज किया जाता है, आप भी याद कर लीजिएगा इसको. मिथाइल ऑरेंज एसिड को रेड कर देता है, बेस को येलो कर देता है. ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो. दैट्स अप टू यू, फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव रिटन इट हियर. So in today's lecture, as per the time criteria, it's all over. So for tomorrow we will be reading about chemical properties of acids and bases. Thank you so much. Have a nice day.